Great. Sounds good. Let us begin. Since we already got delayed, we should not be delaying more. I'll begin. If people are still not joining on time, that is up to them. Let me know once my screen is visible. दिख रहा है मेरा स्क्रीन? डेवलपर कंसोल? Yes, sir. Great. Fine. So before I begin for today, anyone have any questions regarding the basics we covered last time? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ क्वेरी? नो? फाइन. ग्रेट. तो हमने जो बेसिक जो हमने क्वेरी का स्ट्रक्चर सीखा था फॉर एसओक्यूएल, व्हाट वी हैड कवर्ड इज एसओक्यूएल इज आवर language which is used to retrieve data. So it is a structured object query language, a language which lets us query records from Salesforce based on our requirement. Now, what does it mean by based on our requirement? That means we can specify specific fields, specific column. हम बता सकते हैं कि हमको यही चाहिए, हमको सारा डेटा नहीं चाहिए. Maybe एक ऑब्जेक्ट का 5 फील्ड ही चाहिए. Like in this example, maybe I just need 2 fields, right? So that I can mention. It also lets me add conditions that okay, specific criteria is satisfied, तभी आपको data लेके आओ. So those are also the structures which we have. Right. So this is basically in the query part we have done. Now within this again, तो हमने जो basic data का structure था, query का structure was based on these 4 attributes. Okay, so what are we fetching, from where we are fetching, what are the conditions, and do we want some kind of arrangement? Now out of this, what is the purpose of the fourth part? Let me give you an example. Let's say आपको एम्प्लॉयज का डेटा डिस्प्ले करना है बेस्ड ऑन ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट. ओके, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एम्प्लॉयज का आपको डेटा डिस्प्ले करना है, और जस्ट अ सिंपल यूज केस मे बी खाली अल्फाबेटिकली डिस्प्ले करना है, राइट? मे बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉय का सैलरी डिस्प्ले करना है, राइट? सो देयर कैन बी कंडीशंस जहां पे वी विल वांट सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिसमें हमारा डेटा डिस्प्ले हो, राइट? So for that, after all these queries are available to us, we do get another clause in SOQL, which is order by. Okay. Now, what does this order by do? Let me do one thing. First, I'll just run this query once. Okay. And we will running queries in the query editor, right? Let's run this query once and we see ये हमारा condition satisfy हुआ, उनमें ये सब आया. Now let me remove this condition. I want more records. I want all the accounts. Let's execute, and these are all the accounts which have come as per जो भी हमने data already record में create करके रखा हुआ है. Now, however, if you see again, unorganized format में हमारे पास data आया है. What if I want this as order by say name? Let's do name. Very simple, very basic. Now, based on the name, all of these was arranged. Now, what if in use case, what we will end up with is actually something like this. कि ओल्ड टू न्यू अगर मेरे को रिकॉर्ड्स बनाने हैं, यू विल कम अप विद सिचुएशंस जहां पे बोल रहे हैं कि इस कस्टमर का लेटेस्ट केस आप लेके आओ. तो हाउ विल यू नो विच इज द लेटेस्ट केस, राइट? यू विल नो द लेटेस्ट केस बेस्ड ऑन व्हेन द केस वाज क्रिएटेड इन योर सिस्टम, राइट? सो इन दैट
you will be using fields like order by for created date, maybe last modified date. ओके उसके बेसिस पे आप करेंगे. फॉर अकाउंट में भी आपके पास आया है कि अच्छा अकाउंट के पास हमारे जो यूआई पे मेरे को दिखाना है कि जब भी इस अकाउंट पे जाऊं इसके टॉप 3 ऑर्डर्स मेरे को दिखने चाहिए, टॉप 3 ऑर्डर्स ओनली, राइट. सो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू ऑर्डर दोस बेस्ड ऑन द अमाउंट, राइट. सो इन दोस केसेस वी यूज द ऑर्डर बाय नेम. नाउ ऑब्वियसली हमारे पास अगर नॉर्मल नेमिंग का कन्वेंशन है देन वी शुड आल्सो हैव इट्स रिवर्स, which would means अगर हम ascending कर रहे हैं we should always have also descending, and if I do descending you will see it got reversed. Okay, now order by alphabetic fields के लिए you know very simple case that it is based on जो भी अल्फाबेट पहले है उसके अकॉर्डिंग वो आता रहेगा, जो भी अल्फाबेट बाद में है उसके अकॉर्डिंग आता रहेगा. इन केस ऑफ नंबर्स डिफॉल्ट आप देते हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डिसेंडिंग देंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. डेट टाइम फील्ड से अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं या खाली डेट टाइप के फील्ड से भी कर रहे हैं या फिर डेट टाइम, सो डेट के फील्ड से जब आप ऑर्डर कर रहे हैं सो इट विल बिकम अगेन नॉर्मल ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, और अगर डिसेंडिंग कर रहे हैं तो लेटेस्ट डेट टू द ओल्डेस्ट डेट हो जाएगा. डेट टाइम है तो उसमें फिर टाइम का फ्रेगमेंट भी ऐड हो जाएगा कि सपोज 19 जुलाई को ही एक केस मॉडिफाई हुआ था मॉर्निंग 10 AM, एक केस मॉडिफाई हुआ है इवनिंग 4 PM, सो देन डिसेंडिंग में वो ऊपर आ जाएगा, राइट. सो ऑर्डरिंग ऑब्वियसली वी कैन यूज विल प्रॉब्लम जब हम यूआई कंपोनेंट बनाएंगे वहां पे विल एक्चुअली यूज इन द क्वेरीज टू शो डेटा एंड वो हम डिस्प्ले करेंगे. ओके सर बाय डिफॉल्ट इज इट असेंडिंग? यस, इफ यू ओके. डोंट राइट एनीथिंग. ये स्मॉल एंड अपर केस में एस का तो कोई रोल नहीं है ना इसमें? नो, दैट आई टोल्ड लास्ट टाइम, राइट. all the query keywords I am writing as capital key. Okay. No sir, Yes. not in that. So for example we have Field ordered for it the by field for the field. yes. This you are asking? No. हाँ जी, नेम में जैसे स्मॉल एस और कैपिटल एस अगर आ जाए तो उसमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. Okay, let's check that specific thing. If you see Yeah. here, right. Okay, for within the okay within the same string. जैसे suppose एक sample ये है और एक sample smallest भी होता तो. Right sir. That here? No difference, no difference. Okay. तो वो एक के ऊपर एक आ जाएगा. That is like you never know which one will come first. Okay. So that does not differentiate. Case sensitive, this is not. Okay. Now ये हमारे पास आया order by name. Okay. Now you have to remember SOQL में Salesforce में what I told you that everything has a governor limit. Okay. Anything that you run has a governor limit. So then by extension हमारा query का logic अगर हम लिखते हैं तो उसमें भी governor limit होना चाहिए. What are the kinds of governor limits जो एक query में लग सकता है as per you? किस किस टाइप का गवर्नर लिमिट आपको लगता है क्वेरी में लगना चाहिए? आप डेटा फेच करते वक्त सपोज आप कहीं से डेटा लोड कर रहे हैं तो क्या क्या टाइप का लिमिटेशंस हो सकता है? थिंक लॉजिकली जस्ट. कि सर एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स ही फेच हो पाएंगे. राइट, एग्जैक्टली. सो देन अगर मेरे सपोज एक एक्चुअल बिजनेस का आप और देखें तो अकाउंट का डेटा देखते हैं. सपोज इस बैंक का आपके पास डेटाबेस है, प्रोजेक्ट है, तो ऑन एन एवरेज एक बैंक में कितने अकाउंट्स होते होंगे? मिलियंस ऑफ अकाउंट्स होंगे, राइट, इन अ स्पेसिफिक बैंक. तो अकाउंट रिकॉर्ड्स में भी मिलियंस होंगे. one person may have multiple accounts, so then there will be even more. अब in that case अगर आप ऐसे query लिखते हो, right, without less conditions, so then जितना आप condition लिखोगे उतना आपका scope normal होगा. Like think of it like this, you will search for okay, get me account of people whose name starts with K.
लाखों अकाउंट्स आ जाएंगे, देन यू फिल्टर इट मोर। ओके, स्टार्ट्स विद कुणाल, थोड़ा कम होगा। ओके, स्टार्ट्स विद कुणाल, रिसाइड्स इन इंडिया, थोड़ा और कम हो जाएगा। इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, और कम हो जाएगा। So the purpose of all these conditions whenever you are writing query is as many conditions as you can write to make it more accurate. You should always write. जितना हो सके कंडीशन आपके क्वेरी में टू मेक इट मोर एक्यूरेट, आपको वो कंडीशंस एडेड होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दैट सेम प्रिंसिपल्स हैपेंस हियर कि सेल्सफोर्स इज अ मल्टी टेनेंटेड एनवायरनमेंट। तो अनलिमिटेड रिसोर्स किसी एनवायरनमेंट में है नहीं, रिसोर्सेज का रिस्ट्रिक्शन है, हर जगह रिसोर्सेज का रिस्ट्रिक्शन है। So that same thing is applied to SOQL also कि अगर आपने क्वेरी में कंडीशंस ठीक से नहीं लिखा, and let's say I had searched with okay just get me accounts which of name K, so then लाखों अकाउंट क्योंकि डेटाबेस में है, क्वेरी को अलाउड नहीं है उतना अकाउंट ला। सेल्सफोर्स हैज पुट अ लिमिट कि एक बार में क्वेरी कितना रिकॉर्ड्स ला सकता है, एंड दैट लिमिट इज 50,000 रिकॉर्ड्स। मतलब आपने अगर कोई क्वेरी लिखी एंड उस क्वेरी का रिजल्ट इज मोर देन 50,000 रिकॉर्ड्स, वो फेल हो जाएगा, इट विल फेल। पूरा प्रॉपर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आपका यूआई पे एरर आ जाएगा कि नहीं, कांट डू, सॉरी। तो इन दिस केस व्हाट शुड बी द यूज केस? सेल्सफोर्स को सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, प्रॉब्लम उन्होंने डाल दिया तो सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो सेल्सफोर्स ने सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है, which is the next keyword called limit. Now इसका यूज केस हम कहां पे ज्यादा यूज करते हैं? I have seen people doing it is when they know कि हाँ ठीक है 50,000 से ज्यादा ही आएगा तभी लिमिट डालेंगे, ठीक है। बट इन मोस्ट केसेस व्हाट शुड बी हैपनिंग इज, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कितना डेटा मेरे को फेच करना है, कि मेरे को एक ही फेच करना है, आई विल राइट लिमिट एज 1। ओके, इफ यू नो फॉर श्योर कि मेरे ऑर्ग में अकाउंट ही नहीं है 50,000, मैक्सिमम अकाउंट ही 30,000 है, या अगर मैं ब्लैंक क्वेरी भी लिख दूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अकाउंट तो भी 30,000 ही आएंगे, तो आई वोंट राइट लिमिट एंड दैट शुड बी फाइन। इफ आई नो कि मेरा क्राइटेरिया इतना ही यूनिक है, जैसे कि सपोज आई राइट वेयर id is equals to this, आई नो कि इस id से एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट नहीं लिखता हूं दैट इज फाइन, राइट। सो देयर आर यूज केसेस जहां पे लिमिट नहीं लिखना इज फाइन, एंड you may end up not writing, should not be an issue. But in cases जहां पे लिमिट लिखना चाहिए, that is where you should know what kind of data आपके org में है, and you should always test this using the query editor. आप कोड में कोई क्वेरी लिख रहे हैं, आप उसको एक बार यहाँ पे चला के देख लो, बाय चांस वहां पे आ गया एरर तो आपको पता चल जाए, एंड देन यू शुड ऑलवेज ऐड द लिमिट। एंड इन केस यू नो कि वो ज्यादा आ रहे हैं, यू शुड बी राइटिंग लिमिट 50,000, कि अगर 60,000 भी हैं तो उसमें से पहले 50,000 आ जाए, इट डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, एरर नहीं होगा यूआई। ओके, कोड में एरर नहीं। इज दिस क्लियर? व्हाट इज लिमिट? यस। राइट, नाउ विद दिस स्पेसिफिक केस अब हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि 60,000 मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आएंगे मेरे पास 50,000 ही। सो देन बाकी के 10,000 मुझे अगर फेच करने हैं तो कैसे फेच होंगे? लेट्स चेक दिस इन दिस कोड। ओके, अभी अगर मैं ये कोड रन करता हूं, let me just remove everything, just remove everything, and from account order by
name. This was not a static class. So demo class dot system. Right? ये हम चला के देखते हैं. अभी मेरे पास आएंगे कितने दीपक? All the accounts came alphabetically. All the accounts came. Now if I add here limit 3, तो मेरे पास कितने आएंगे? मेरा क्वेरी रिटर्न ही करेगा 3. अब बाकी के रिकॉर्ड्स में कैसे लाऊं? That is the question. Before I give the solution, I see someone has raised Omkar. Yes, you have a question. No, sir. Sorry, question है नहीं है? No, sir. No, sir. Okay, I saw your hand is raised. Fine. Right, fine. So, anyone, what is the solution? अब मैंने लिमिट तो लगा दिया, अब मुझे इसके बाद के वाले लाने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर लूप लगा दीजिए. लूप लगा दूंगा तो देन क्या होगा? हर बार तो वो 3 ही आएंगे, पहले 3 आते रहेंगे बार बार. सर डिपेंडिंग अपॉन कितने रिकॉर्ड हैं, जैसे 15 रिकॉर्ड है तो हम 5 बार लगा सकते हैं. ओके, लेट मी डू वन थिंग. ठीक है, इसी लिस्ट, इसी कोड ब्लॉक को मैं just I want to just print it directly, so I'll do one thing. I'll do this 3 times. Okay, on list 1 and on list 2. Okay, is this what you're saying? नो सर, मैं थोड़ा कुछ इलॉजिकल सोचने लग गया था, सॉरी. नहीं, बेसिकली अगर मैं इसको फॉर लूप के अंदर पे डालूं, द थिंग इज यही सेम सेम ही क्वेरी तो रिकॉर्ड है. यही सेम चलेगी, राइट? सो राइट. all 3 times if I do run this, the thing will be Burlington Dickinson Edge, Burlington Dickinson Edge, Burlington Dickinson. Every time it will be the same. तो हमें सर ये 3 के बाद जैसे 4, 5, 6 चाहिए. Yes, that is the case, right? Suppose मेरे पास जब 60,000 अकाउंट थे तो मैं मैक्सिमम 50,000 ही क्वेरी कर सकता हूँ, तो बाकी के 10,000 कैसे क्वेरी करूँ? नो आइडिया सर. The approach, if you think, is very simple. कि मुझे पता है मैं एक बार में 3 ही ला सकता हूँ, तो द ओनली चेंज आई हैव टू मेक श्योर कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा चेंज हो, कि पहली बार मैं 1 से शुरू करूँ, फिर चौथे से शुरू करूँ, और फिर 8 से शुरू करूँ, तो मेरा 3-3 करके आ जाए, राइट? 7 से, सर, राइट? सो फॉर दैट what they have provided us is offset. ओके, तो पहली क्वेरी में मेरे पास कितने आ जाएंगे? 3. 3. So then next one I have to start from which position? 4. 4. So then how many records do I need to skip? The first 3. 3. Let's add it 3 here. अगली बार जब मैं चलाऊंगा तो how many records do I need to skip? 6. Let's run this now.
सारे यूनिक आए? यस तो स्टार्टिंग पॉइंट हम क्वेरी का चेंज कर देंगे। हर बार हम पहले से क्यों शुरू करें? हमको पता है एक बार तो 3 आ गए, अगली बार हम उसके बाद से शुरू करेंगे, उसके अगली बार उसके बाद से शुरू करेंगे, राइट? राइट सर यस। एसक्यूएल के लिए 50,000 का लिमिट है, और हाँ, फिर ऑफसेट के लिए कितने का है? ऑफसेट तो आप स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो ना, आप ऑफसेट दे रहे हो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, लेट लेट मी डू वन थिंग। अभी मेरे इसमें अकाउंट कितने थे? 10-12 अकाउंट थे, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ 25, ओके, मेरे इस ऑर्ग में 25 अकाउंट नहीं है, राइट? सो इफ आई रन दिस नाउ, क्या हुआ? आउटपुट कम आएगी नहीं? हाँ इस ओके, लेट मी जस्ट कमेंट दिस पार्ट, तब आपको क्लियर होगा ये इसकी कंफ्यूजन, राइट? तो मेरा यहाँ पे पहले 3 आ रहे थे, उसके बाद ये मैंने कर दिया ऑफसेट 25। नाउ आई हैव रन दिस कोड। तो मतलब ये क्वेरी कौन से रिटर्न करना शुरू करेगा? फ्रॉम द 26th अकाउंट, बट 26th अकाउंट तक वो पहुंचा ही नहीं, उसको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, इसलिए कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, क्वेरी ने कुछ रिटर्न ही नहीं की। ओके, सो द ऑफसेट कैन नॉट बी मोर देन द क्वेरी रिजल्ट। अगर आपके ऑर्ग में सपोज 20 अकाउंट हैं, तो आपका ऑफसेट कैन मैक्सिमम बी व्हाट? 19। मतलब जो क्वेरी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रिकॉर्ड्स अगर 20 हैं, तो योर ऑफसेट कैन मैक्सिमम बी 19। 19 आप ऑफसेट रखेंगे तो लास्ट का जो रिकॉर्ड है वो दिखेगा। अगर आपका क्वेरी रिटर्न भी 20 कर रहा है, आपने ऑफसेट भी 20 कर दिया, तो कोई 21st रिकॉर्ड है आपके क्वेरी में, लिस्ट में? होगा नहीं होगा? नहीं होगा, राइट? देन नथिंग विल गेट डिस्प्लेड, क्वेरी कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा। ओके, इज दिस क्लियर? यस फाइन। नाउ ऑफसेट लिमिट ये सब हमारा क्लियर हुआ। बेसिक आप लोगों को क्वेरी का स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं है? Yes, यस sir. ग्रेट। नाउ व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस फॉर अ क्वेरी? क्वेरी पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से टाइप के हैं? वन, वी इज वेरी इजीली नो कि ये हमारे पास क्या हुआ, 50,000 से ज्यादा हम रिकॉर्ड्स नहीं रिटर्न कर सकते। सेकंड इज, लेट मी शो इट फॉर जीरो 150 आई प्लस प्लस, ये मैंने कंडीशन लिखी है, एंड आई विल पुट दिस इनसाइड द लूप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा? बेसिकली फॉर लूप चलेगा कितनी बार? 150 बार और हर बार मैं अकाउंट्स क्वेरी कर रहा हूँ। So let's run this code. We got an exception. This exception is what? Too many SQL queries, 101. Okay. This is an exception that you have to avoid at all costs in your code. अभी तो मैंने क्योंकि स्पेसिफिकली ये इशू क्रिएट किया है, इसलिए ये फॉर लूप हटाते ही हट जाएगा।
बट वाई यू हैव टू ऑलवेज राइट ऑप्टिमाइज्ड कोड? क्योंकि एक बार देखो, कोई क्वेरी कर रहा है तो किसी पर्पस से ही कोड में क्वेरी कर रहा होगा, राइट? सो दिस इज नॉट अ लिमिट ऑन जस्ट दिस मेथड कि आप इस मेथड के अंदर क्वेरी नहीं कर सकते। 100 से ज्यादा क्वेरी आप नहीं कर सकते एक बार में। नाउ यू मे थिंक कि अच्छा, ये फिर इस मेथड में हमने 100 किया है, मैं इसको अगर सपोज 50 कर देता हूं तो देन इट शुड बी फाइन, ये चलेगा, विच इज फाइन, क्योंकि 100 क्वेरी चल सकता है, 101 नंबर क्वेरी पे एक्सेप्शन आएगा। एंड व्हाट आई विल डू इज, लेट मी क्रिएट अनदर मेथड, पब्लिक void test ओके। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जस्ट नथिंग, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, last name from contact, right? And what I'll do is I'll run this also inside a loop. I is less than 75, I plus plus. ओके, तो ये मेरा चलेगा कितनी बार, 75 टाइम, एंड ऊपर वाला चलेगा 50 टाइम, राइट? साउंड्स गुड, शुड नॉट बी एन इशू। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ठीक है, मैंने दो अलग मेथड में डिवाइड कर दिए और मैं इस मेथड को यहाँ से कॉल करूँ। तो एक मेथड में मेरे पास 100 बार तो कोई नहीं चल रहा है, इसमें 50 बार चलेगा, उसको 75 टाइम चलेगा। तो देन इट शुड आइडियली, इफ यू थिंक किसी मेथड में 100 क्रॉस नहीं हो रहा है, बट इफ आई रन दिस अगेन आई गॉट एन एक्सेप्शन। Now this is where you have to become familiar with a term which is called the apex transaction. Okay, let me do one thing. I'll show you guys the formal definition of apex transaction also. Okay. This you have to remember because इसके साथ खाली query का नहीं और भी limitations हैं. Apex transactions means a set of operations that is executed as a single unit. So what does that mean? एक यूनिट में मेरा जो कोड चल रहा है यहाँ से मैंने चलाना शुरू किया, टेस्ट डेमो मेथड चलाना शुरू किया। अब यहाँ से मेरा ये वाला मेथड कॉल हुआ, यहाँ से सपोज कोई और दो मेथड कॉल हो गए, फिर किसी और क्लास का एक कॉल हो गया, राइट? दैट इज अ होल सीक्वेंस until that closes, that is called a apex transaction. कंटिन्यूअस एक के बाद एक जब लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अभी ये ट्रांजैक्शन मेरा कहाँ पे खत्म हो रहा है? थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर मैंने खाली ये वाला मेथड कॉल किया होता तो ये मेथड यहाँ पे शुरू होता, यहाँ पे खत्म हो जाता। दैट इज अ ट्रांजैक्शन फिनिश्ड। इन दिस केस मैंने ये मेथड कॉल किया है, ये लाइन चली, ये वाली लाइन चलेगी, राइट? ये लूप चलेगा, उसके बाद ये मेथड कॉल हो गया फ्रॉम विद इन दिस, फिर यहाँ पे आ गया, ये चला 75 टाइम्स चला, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर ये खत्म हो। सो दैट मीन्स this whole chain, continuous execution of a set of operations, is a transaction in Salesforce. And जो हमारा 101 SOQL exception है, that is applicable across a transaction. कि आपका एक ट्रांजैक्शन में 100 क्वेरीज से ज्यादा नहीं हो सकती। यू मस्ट बी थिंकिंग एक मेथड में क्यों 100 क्वेरी हम लिखेंगे, बट इट इज नॉट वन मेथड दैट विल बी 100 क्वेरी। ओके, सपोज यूआई पे कुछ चेंज हुआ, वहां पे डेटा फेच किया, फिर कुछ मॉडिफाई किया, सेव किया, फिर वो ऑब्जेक्ट अपडेट होगा, अपडेट पे ऑटोमेशन चलेगा, ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर से अलग मेथड कॉल होंगे, वहां से अलग क्लास कॉल होगी, वो सब खत्म होके एग्जीक्यूशन खत्म होगा, फिर वापस यूआई पे जाएगा, फिर जाके आपका मेथड खत्म होगा।
एक बार कोड चलना शुरू हो गया, जब तक ये कोड खत्म नहीं होता, दैट इज वन ट्रांजैक्शन। तो ओवर टाइम ऐसा क्या होगा, जब बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐड हो जाएंगी, तो दिस विल बिकम लाइक आपने यहाँ पे एक ही क्वेरी लिखी है, लेकिन फिर आपने कोई मेथड कॉल किया, वहां पे एक क्वेरी है, फिर यूआई के मेथड में 2 और क्वेरी हैं, फिर यहाँ पे सेव करने के बाद अपडेट करें, वहां पे कुछ और क्वेरी आपने ऐड की, ट्रिगर में जाके वहां से कोई कॉल आउट हो रहा है, वहां क्वेरी ऐड हो गई। एट सम पॉइंट और समवेयर 100 क्वेरी हो ही जाएगा, एंड बाय दैट पॉइंट द सिचुएशन बिकम्स कि सबने तो किसी फंक्शनैलिटी के लिए क्वेरी लिखा है, तो अब किसकी क्वेरी हटाएं, कैसे हम क्वेरी कम करें। which is why you have to be always analyzing beforehand। क्या मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखने की जरूरत है, क्या ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर नहीं है तो मुझे ऐसी क्वेरी करनी है ताकि बाद में किसी को मॉडिफाई करना पड़े, वो भी मेरी क्वेरी ही यूज कर सके, नए से क्वेरी लिखने का जरूरत ना हो। ऑलवेज थिंक बिफोर एडिंग क्वेरीज, ऑलवेज चेक इफ डेटा इज ऑलरेडी देयर एंड मेक श्योर इट इज ऑप्टिमाइज्ड। ये 101 क्वेरी यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज सिचुएशन क्या होता है, 99 क्वेरीज शायद 2 साल से प्रोजेक्ट में है, आपने वो जो एक क्वेरी डाली, जिसके बाद 2 क्वेरी डाली, जिसके बाद 101 हो गया, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑलवेज फर्स्टली क्वेरी लिखने से पहले तो सोचो। और दूसरा, द थिंग आई हैव डन हेयर, ये तो मैंने खाली आप लोगों को डेमो देने के लिए किया है, बट आपको कभी कभार लगेगा कि अच्छा मेरे को 2 अकाउंट के लिए करना है, तो मैं 2 बार क्वेरी लिख लेता हूँ, राइट। थिंक ऑफ इट, ये सपोज इस मेथड को हम हटाते हैं यहाँ से, ये मेरा मेथड बोल रहा है कि फॉर ये कॉन्टैक्ट्स मेरे को क्वेरी करके लो। Okay, let me remove this method. My requirement is for this method is query all related contacts to, let's take 3 accounts. कोई 3 accounts है मेरे पास, let me run this query one, या फिर let's take something else, energy के 3 account है, right? Industry equals to energy, so my query is इन 3 account के जितने contact है वो मेरे पास आप लिखें। So then what would my logic be? चलो हम पहले क्या करेंगे, where industry equals to energy, ये 3 अकाउंट आएंगे। अब इन 3 अकाउंट्स में से मेरे को लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकालना है। कॉन्टैक्ट वेयर अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू record.id, ये मैंने लिखा। तो अब मेरा लॉजिक यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले मैं कॉन्टैक्ट्स इस लूप को मैं हटा देता हूँ, दिस लूप इज नॉट लॉन्गर नीडेड, राइट। पहले आई विल फेच ऑल द कॉन्टैक्ट्स ऑफ एनर्जी अकाउंट्स, और फिर मैं उस पे एक लूप चला रहा हूँ, एंड देन फॉर एवरी अकाउंट आई एम क्वेरिंग ऑल द कॉन्टैक्ट्स। इज दिस क्लियर, यहाँ पे क्या चल रहा है, एनीवन? एक्सप्लेन once again। राइट, मेरे पास रिक्वायरमेंट आया है कि एनर्जी वाले जितने अकाउंट्स हैं उन सब का कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट प्रिंट कर, ओके, उन सब का कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट प्रिंट कर। तो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे एक और फॉर लूप चलाते हैं, फॉर कॉन्टैक्ट record in contact list and the debug, record dot first name
प्लस राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई क्वेरी ऑल द अकाउंट्स जिनका टाइप है इंडस्ट्रीज एनर्जी, एंड देन फॉर एवरी अकाउंट आई एम नाउ क्वेरिंग उसके साथ लिंक्ड कौन कौन से कॉन्टैक्ट हैं, देन आई एम प्रिंटिंग दिस राइट। यही मेरा रिक्वायरमेंट था कि एनर्जी वाले अकाउंट के सारे कॉन्टैक्ट्स आप क्वेरी करें और डिस्प्ले करें। इज दिस क्लियर? Yes. Right. So let's see what is the output for this. Oh, sorry, I didn't remove this. See, United Oil, उसके चारों कॉन्टैक्ट, देन यूनाइटेड ऑयल एंड गैस सिंगापुर, उसके दो कॉन्टैक्ट, यूनाइटेड ऑयल एंड गैस एनर्जी और उसके एक कॉन्टैक्ट, राइट। मेरे पास अकाउंट है, कॉन्टैक्ट। आई डोंट नीड टू प्रिंट द अकाउंट नेम, आई जस्ट नीड टू प्रिंट, लेट्स से, द कॉन्टैक्ट नेम. दैट इज माय आस्क. Let me write once more. Now in this case, if you see, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास कॉन्टैक्ट्स का डेटा आया फॉर ऑल दोस 3 अकाउंट्स. बट इफ यू थिंक लॉजिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पे कितनी क्वेरीज चल रही हैं? कैन एनीवन गिव मी अ काउंट कि यहाँ पे कितनी क्वेरीज चली? Sir, number of records plus one. Which number of records? Account records. Right. So once it ran for fetching all the accounts, let's say this is the one time it ran, and it returned to me 50 contacts, 50 accounts. Then this query ran, that means 50 times, right? ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, लूप के अंदर जो मैंने क्वेरी लिख दी है, this has led it to run 51 times. Now if my first query returned 100 accounts, एक्सेप्शन आ जाता मेरे पास? Yes, sir. आता कि नहीं? मेरे पास अगर अकाउंट ही 100 हो जाते तो मेरे पास एक्सेप्शन आता कि नहीं आता, राइट? Because it would immediately become 1 plus 100, 101 error. So this is way जहां पे आप क्वेरी लूप वगैरह के अंदर लिखते हैं, एनी प्लेस जहां पे वो रिपीट हो सके. ओके, दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग क्वेरीज. आप कभी भी कोशिश करेंगे क्वेरी आप लूप के अंदर ना लिखें. You should never be writing query in a loop unless you have no other way, which normally should not happen. Okay, ऐसा होगा नहीं in most cases. So then what should be the approach अगर मेरे को query loop के अंदर नहीं लिखनी? So right now in this case, okay, let's do one thing. ये मैं इंडस्ट्री का कोड हटा देता हूँ, ठीक है, and I'll just print how many accounts came, right? That size, oh sorry, what am I writing? Debug
Right. Okay. Number of queries. Now I need a way to check Salesforce में अब क्वेरी का काउंट का इतना है, राइट? तो कुछ तो तरीका होगा, राइट, कि हम कैसे देख सकें कि भाई कितनी क्वेरीज रन हुई हैं. तो Salesforce has provided us a way, which is there is a class for all of these things. Okay, and that class is limit. Salesforce का एक ऑलरेडी एक लिमिट का एक क्लास है that lets you display कि इस वक्त तक आपके कोड में कितनी क्वेरीज चली हैं. And what is the way to check that? Is just limits dot get limit query. Okay. Now let me just print this first here, then here, and save. What happened? Buy? Why is there a buy here? Unaccepted token, line 5. List account list is this select ID. Okay, where मैंने हटाया नहीं, sorry. Right. Now if I run this, you will be able to see देखो सबसे पहले मेरे पास लिमिट कितना था? Hold on, what did I display here? Oh, sorry. This is the limit I am displaying. I need to just display कितना query run हुआ है, right? Right. Get limit queries आपको limit बताता है कि कितना हुआ है. So that's why it is showing 100. Okay. We need what are the queries जो run हुआ है, कितना run हो चुका है. So now if you see, सबसे पहली बार हमने जब print किया, this is after this query. So then number of queries what was 1. Then it ran 14. इसके end तक आते आते number of queries ran became 14. Just इतने से कोड में suppose. तो 100 hit करना is not a challenge if you don't write correct code. Is this clear? Yes, sir. Right. Now the problem वहाँ comes. पे सर Sorry? इनसाइड जो फॉर लूप, सर जो इनसाइड फॉर लूप लगाया हुआ है हमने, जहाँ पे हम कॉन्टेक्ट्स फेच कर रहे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में, वहाँ अकाउंट आईडी इज इक्वल टू आपने वो कॉलन रिकॉर्ड डॉट आईडी लगाया है. व्हाट इज दिस? This I told last time, right? कि जब भी हम क्वेरी के अंदर हम वेरिएबल्स जैसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, राइट, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू लाइक लेट्स से स्ट्रिंग, राइट, उसकी जगह हमको एक वेरिएबल भी बना सकते हैं. वो वेरिएबल का हम वैल्यू जब पुट कर रहे हैं, एनीथिंग व्हिच इज नॉट डायरेक्ट वैल्यू, वी कैन राइट दैट कोलन. सो दिस कोलन मींस व्हाट? यहाँ पे आप देखिए रिकॉर्ड क्या है. दिस इज दिस अकाउंट लिस्ट के अंदर जिस पे लूप चल रहा है, रिकॉर्ड. तो query will run like this: select id first name last name from contact where account id is equals to जो भी इस रिकॉर्ड वेरिएबल की आईडी की वैल्यू. ओके ओके, तो द वन थिंग वी कैन डू इज क्वेरी में जैसे सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू एनर्जी, राइट? दिस वाज व्हाट आई वाज राइटिंग. इंस्टेड इफ आई राइट स्ट्रिंग
industry is equals to energy, and here I can write colon industry. जो भी वेरिएबल का वैल्यू है वो यहाँ पे चेक कर जाएगा. Right. Understood. Okay. Maybe तो यहाँ पे I हमने क्या missed. किया, या अकाउंट आईडी जो यहाँ पे रहेगा. दिस इज व्हाट आई डिड लास्ट टाइम, जो रिकॉर्ड आईडी हमने वेरिएबल में डाल के ऐड करके देखा था क्वेरी में, राइट. So that Right. same thing I'm doing here. Instead of just a single variable, यहाँ पे मैं इस record को लेके record dot id की वैल्यू डाल. सर हमें यहाँ पे अकाउंट लिस्ट की जगह डायरेक्टली आईडी टाइप लिस्ट नहीं बना लेना चाहिए था. कहाँ पे id type list? But मेरा Yes. query तो account का return करेगा, right? ये account list is created from what this query has returned. This query will return what? नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली यही नहीं लिखना चाहिए. सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इज इक्वल टू एनर्जी ऑर्डर बाय नेम, और वहां पे वो आईडीज फेच कर लेता और हम नीचे ही आईडीज को यूटिलाइज करके कॉन्टेक्ट आईडी निकाल के वो उसको प्रिंट करा देते. नहीं, IDs को निकाल के तो हम प्रिंट कराएंगे ही, अकाउंट आईडी पे ही रहेगा. द इशू इज वेयर सिचुएशंस आर जहाँ पे हमको लूप्स बनाने हैं, राइट. तो लूप में जब फेच करना है, दैट इज व्हेन वी नीड टू ब्रेक इट डाउन. नाउ हाउ वी नीड टू ब्रेक इट डाउन? ये जो हमने अभी रन किया, दिस सेम थिंग गॉट अस टू 14 क्वेरी. नाउ लेट मी ट्राई इट इन अ डिफरेंट वे, व्हिच इज, लेट्स कीप दिस एज सेम. ओके, ये क्वेरी मैं सेम रखूंगा. अकाउंट मेरे पास है, इंडस्ट्री वाला हटा देते हैं, इंडस्ट्री हमको नहीं चाहिए. वी वांट ऑल 14 आया ना, ऑल में 14 रखेंगे, राइट. Now what I'll do is I'll create a list of ID. Okay, account ID list is equals to new list of ID. Actually, the better way should be, we know that IDs are always unique. तो इसको लिस्ट की जगह हम बना देंगे set, ताकि the chance of repetition is reduced. Now we will just run this loop. यही loop हम रन कर रहे हैं जो हमने ऊपर loop किया था, which is for account record in account list, right? Account ID list dot add record dot id. Now I will query for this thing. List of contacts I'll query, but this time instead of querying from one record, I'll change it to account ID in what, जो हमने set बनाया है. हम collection डाल सकते हैं, right? We already know that we can add collections. Yes. So now if I Sir, run this, this is completely fine. I am aware of this method कि हम आईडी निकाल सकते हैं. मेरा डाउट सर बस इतना है कि जब भी हम जैसे हमने लाइन नंबर 4 में अकाउंट टाइप लिस्ट बनाई है, राइट, तो उसमें अगर हम उसको अकाउंट टाइप छोड़ के अगर आईडी टाइप बनाए, तो क्या हम सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट्स डायरेक्टली फेच करना पॉसिबल है, या फिर जस्ट बिकॉज वो अकाउंट का आईडी है तो वी हैव टू मेक अकाउंट टाइप आईडी, मतलब अकाउंट टाइप लिस्ट. सॉरी, this is what you are asking, right? यस, क्योंकि एट द एंड तो वो आईडी ही दे रहा है ना, उसमें बाकी अकाउंट के एलिमेंट्स नहीं दे रहा है. Hold on. I just want to know, is it possible? Variable का नाम is duplicate and we have to make. Now if you see here, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है. Hold on, I have to fix the variable things.
क्या हो यहाँ पे? illegal assignment from list to list. Variable does not exist ID. No. I think ID is backend part, no? So we Hmm. need to fetch that. Understood Illegal सर, वो assignment ID को भी वो from partition वो list of differentiate account कर रहा है. to list of ID. ID is a field on a record. Query returns you a record. अब आप क्वेरी के अंदर एक फील्ड लिख रहे हैं, 4 फील्ड लिख रहे हैं, 5 फील्ड लिख रहे हैं, वापस आपके पास रिकॉर्ड ही आएगा, बट रिकॉर्ड की कौन कौन सी फील्ड आएगी अंदर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, सो द थिंक ऑफ इट लाइक अ Understood. पैकेज. ओके, द पैकेज इज रिकॉर्ड ओनली. आएगा वापस आपके पास रिकॉर्ड ही. रिकॉर्ड किसका आएगा? अकाउंट का. अब रिकॉर्ड के अंदर से फिर आप रिकॉर्ड डॉट करके आईडी निकालेंगे. Understood sir. ओके, Right. so that is why this needs to be this. Okay, so I changed. Now let's run this. अब मैंने यहाँ पे भी 2 बार queries ऐड कर दिए हैं, right? So first time it ran, then 1, 2, 3, 4 till this point, all the contacts got printed. Then number of queries was 15. Then again I ran one time. I queried all the account. Then I query all the account. तो जो यहाँ पे 14 queries में हो रहा था, वो यहाँ पे 2 queries में हो गया. Now, obviously, you can say that, see, logically समझने में ये वाला code is easier. पहले अकाउंट क्वेरी के, फिर उस अकाउंट के लिए हर कॉन्टैक्ट क्वेरी के लिए. यहाँ पे पहले अकाउंट क्वेरी करो, फिर उससे एक लिस्ट बनाओ, फिर उस लिस्ट का कॉन्टैक्ट क्वेरी करो, राइट? सो लॉजिकली दिस सीम्स टू मेक मोर सेंस, बट ड्यू टू प्लेटफॉर्म लिमिटेशंस, दिस इज व्हाट इज बेटर. क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली आप कोड से डेटाबेस में 14 टाइम्स जा रहे हैं, right? So from one place to the other place you are going and retrieving data. यहाँ पे हम डेटाबेस के साथ 2 ही बार इंटरैक्ट करेंगे, बाकी का लॉजिक अपने कोड में हैंडल करेंगे. ओके, सो सर मतलब ये है कि ओरिजिनल लूप. हमें we have to restrict ourselves from writing these so-called queries inside for loop, because for loop एक यूनिट के लिए मल्टीपल उससे एसोसिएटेड यूनिट्स चेक करता है. राइट, बिकॉज आपके पास क्वेरी खाली 100 ही है एक ट्रांजैक्शन में. सो दैट मीन्स एक ट्रांजैक्शन में जितना भी फंक्शनैलिटी हो रहा है, जितने भी टीममेट काम कर रहे हैं, सबको मिला के 100 पार नहीं होना चाहिए. अब आपने एक लूप में लिख दिया, आपके ही 25 चले गए, तो फिर क्या होगा, राइट? Right. So instead of this, we will always go with, okay, let me keep it commented. मैं क्लास का कोड आप लोगों को भेज दूंगा. क्या we should always be going with this approach. Okay, minimize the number of codes. Always try to minimize the number of queries. Sorry, थोड़ा कोड ज्यादा लिखेंगे लेकिन क्वेरी कम करेंगे, तो that is always recommended, right? Now आप यहाँ पे what are the ways to still optimize this? Are there ways to still optimize this? What all we can do? Okay, so there is one other solution, right, which is based on, again we are back to that question. So just now we were asking, right, कि हम खाली IDs की लिस्ट क्यों नहीं रिटर्न कर सकते? तो हम IDs की लिस्ट नहीं रिटर्न कर सकते कभी SOQL से. SOQL आपके पास 2-3 चीजें आप SOQL से रिटर्न कर सकते हो. ओके, वन इज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, which is a list of object.
you can return. Always list of object you can return. Like in this case, we have returned a list of account. यहाँ पे हमने list of account हमने return किया. Now, if I just write the same thing and I add limit 1. So now I know this query will always return what? One ID. One account, not ID, account. Right? So in this specific case, what I can make it is, instead of a list, I can just write it account. So query does not always have to return a list. It can also return a single account. But there will be very less cases जहाँ पे आप query लिख के एक ही account ला रहे हैं. Your code should be एक आए तो भी code चलना चाहिए, 10 आए तो भी code चलना चाहिए, right? So normally you'll be using this list of data type. But a query can also return a single record. It's not always कि हर बार list return करेगा. Right? आप limit 1 लिखो एक ही आएगा. Right? So this is also possible. Now there is another thing which is possible for query is to return a map. Let me arrange it in different way. List single record return कर सकता है, list of return कर सकता है, and one other thing a query can return is a map of ID, account. Whatever is the object, उसका data type का आप return कर सकते हो. तो account का हो, contact का हो, जिसका भी है, you can return it in this way. Which will be what? जो हमको जो चाहिए था, खाली ID जो fetch होगा, right? So in this case क्या होगा? यहाँ पे ID आएगा, पहले अकाउंट का ID, उसके corresponding पहला अकाउंट रिकॉर्ड, दूसरे अकाउंट का ID, उसके corresponding दूसरा अकाउंट. बट इसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. द डिफरेंस इज, जब हम लिस्ट बना रहे हैं या सिंगल बना रहे हैं, हम डायरेक्टली इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के कर देते हैं. फॉर मैप यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, मैप ID, अकाउंट, राइट? अकाउंट मैप इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट क्वेरी अगर मैं इसे लिखूं तो इट विल फेल, क्योंकि क्वेरी मेरा क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट. So instead, what you have to write is new map of ID, account, and inside this you write this query. So what will happen? ये query return करेगा आपका list, उस list को ये convert कर देगा into map of ID and account, then you get this variable. अब जब ऐसा हम प्रिंट करते हैं तो what we end up with is, क्योंकि हमारे पास अब मैप आ गया है, so the thing what we can do is, if I print here account map dot keyset, ये जो मैप का मेथड है, राइट? कीसेट है और वैल्यू से, ये दो मेथड हमने देखे थे. तो अकाउंट मैप डॉट कीसेट, तो व्हाट आर द कीज इन दिस मैप? इस मैप में कीज में क्या क्या है? की में तो अकाउंट का आईडी है, राइट? एंड वैल्यू में अकाउंट का रिकॉर्ड है. तो अगर मैं की सेट प्रिंट करता हूं तो लेट्स सी व्हाट गेट्स प्रिंटेड. सी, राइट? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 जितने भी अकाउंट्स हैं, सारे अकाउंट्स का आईडी इज इन द की सेट. तो इफ आई यूज मैप, मेरे को अब इसकी जरूरत नहीं है.
ये लूप चलाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैंने डायरेक्ट एक ही क्वेरी किया मैप में, एंड आई राइट हियर आईडी इज इन व्हाट, अकाउंट मैप डॉट की सेट। तो अब मेरे पास क्या हुआ, ब्रेक डाउन तो मैंने किया, राइट? आई हैव ब्रोकन डाउन द कोड, इंस्टेड ऑफ लिस्ट आई हैव क्रिएटेड अ मैप। इस वजह से मेरे को अब अलग से एक और लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट मैप का की सेट लिया एंड एक ही लूप में और दो क्वेरी में मेरा काम हो गया। Now, is this the shortest version or not? जो एक एक्स्ट्रा हम लूप चला रहे थे, सेट बना रहे थे, फिर फॉर लूप बना के सारी आईडीज उसमें डाला, फिर उसके ऊपर क्वेरी किया, उसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? We still got the output. Two queries, all the output, and just one loop. Now, is this clear? Sir, key set function returns a set of keys, right? Because हाँ. since they are always unique, तो वो set में हम store भी कर It सकते हैं. returns a set. It does not return a list, क्योंकि keys will always be unique. And Yes. same, जो values वाला था, तो की सेट लेफ्ट साइड को लाएगा, वैल्यूज राइट साइड को लाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट मैप डॉट वैल्यूज लिखता तो मेरे पास आता लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। राइट सर, वो लिस्ट में आएगा क्योंकि बिकॉज उसमें रिपीट हो सकता है repetition इसलिए, हो सकता है. बट कीज क्योंकि यूनिक ऑलरेडी है तो वो सेट में ही रिटर्न करता है। Anyone, any doubt, any query? Nothing? Fine, that's good. Let's take a 5-minute break and then we'll resume. Okay, 5 minutes का एक ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट से 2-3 पानी वानी पी लीजिए, 1-2 मिनट का ब्रेक एंड देन ओके।
Right. Hello everyone. Back. Right. Anyone, any queries, any doubts? थोड़ा time कुछ absorb किया, कुछ सोचा? Anyone has anything from this? No? Good. So then, if you see here, ultimately हम जहाँ तक पहुँचे थे, that whole multi-line of code, multiple loops and all, we ultimately end up reducing it to this one. Account query करें, उसके बाद उसके related contacts query करो, and then get it to run. Now, ये तो चलो हमने कर दिया. But what if there was a way कि हम related contacts को fetch कर सकें directly? Okay, if we could just directly fetch related contacts, कि मेरे पास एक method हो कि मैं account की query में ही उसके contacts को query कर सकूं. Would that be a better scenario? Yes, sir. Right. Now, अब उसके लिए there is few things you have to remember, which is that you can see developer console, right? Yes. Or you can see this. ये दिख रहा है या डेवलपर कंसोल दिख रहा है? दोनों मतलब दिख सेल्स ऐप दिख रहा है, राइट? अभी फाइन, राइट. सो अब वहां पे हमारे पास क्या इशू आता है? इशू आएगा टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ओके, इफ इट इज जस्ट अ लुकअप रिलेशनशिप, दैट मीन्स they are just linked to each other, but there is no hierarchy between them, right? Lookup relationship में there is no hierarchy between the records. That means one cannot control the other. तो इसीलिए one cannot also be dependent on this, क्योंकि रिलेशनशिप ब्लैंक हो सकता है, नहीं भी ब्लैंक हो सकता है. तो इसीलिए क्वेरी में आप उसको नहीं लिंक कर सकते हो, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन ऐसा हो जाएगा. लुकअप तो आप मल्टीपल बना सकते हो, राइट? एक ऑब्जेक्ट पे लेट्स से देयर आर 25 लुकअप फील्ड्स, तो देन द लॉजिक शुड बी हियर कि उन 25 ऑब्जेक्ट से ही मैं मेरे ऑब्जेक्ट को भी क्वेरी कर सकूं. दैट इज नॉट फीजिबल एंड आल्सो should not be the case. Data should not be that easily, delinkable, which is why Salesforce has given you a condition. ठीक है, आप एक ही क्वेरी से उसके रिलेटेड क्वेरी ऑब्जेक्ट का डेटा भी ला सकते हैं, as long as the related object is a child of the object, which means parent child relationship, master detail relationship पे जहां पे है, right? वहीं पे आप कर सकते हो. क्या कर सकते हो? Doing it is very simple. Okay, it is very simple, which is ये मेरे पास जो था यहाँ पे, right? What if I write it like this, which is I'll just query one record. Okay, account record equals to, or let's do the list only. List make a template. Okay, list account records is equals to basic. हमारा क्या था query? Select ID from account. Okay, this is the basic query I want. But now what I will write is I'll add a comma. Select ID comma first name comma last name from okay. So this seems fine कि अकाउंट को क्वेरी कर रहा हूं, उसी के अंदर मैंने इनर लॉजिक लिख दिया है कि मैं कॉन्टैक्ट भी क्वेरी कर लूं. बट देयर इज अ डिफरेंस हियर, व्हिच इज
if I go here to my setup, जो मैं child object ला रहा हूं, am I just querying one contact or am I querying all the contacts related to that account? ऊपर वाले यूज केस में हम क्या कर रहे थे, हम इस अकाउंट के सारे कॉन्टैक्ट्स क्वेरी कर रहे थे कि नहीं, राइट? तो इन दिस केस आल्सो आई हैव टू मेंशन इन सम वे कि इस अकाउंट के साथ जितने भी कॉन्टैक्ट है आप उन सबको लेके आए. दिस इज वेयर जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे एक हमने प्लूरल लिखा था, right? This plural comes into picture here. I have to write here as a plural. Now, what will happen? Okay, let me do one thing. Right. इसको पहले हटाते हैं, दो बार हम बनाएंगे. चलो. This is account records one. तो एक बार मैं खाली बेसिक करता हूँ. Select ID from account, limit 1. Record name, limit 1, and here also I just want to display one record each. Yeah. Whatever name, limit 1. And I'll print this. System.debug 1. ठीक. पहला जो एलिमेंट में प्रिंट करेंगे, and the same thing let's print here also, and we will see the difference. But let me comment this first. ये बार बार प्रिंट होता है. हो गया, प्रिंट कर दिया मैंने. ओह सर, लिमिट 1. If you see here now, यहाँ पे account ID आया. Okay, hold on. This account does not have any contact, it seems. Let's pick an account जिसमें contacts हैं. Okay. तो LinkedIn में कोई contact नहीं है. नहीं, LinkedIn में है contact. हाँ, फिर ID equals to now if I run this, you will see record जो मेरा प्रिंट हुआ है that is available है. जो specific ID मैंने किया है वो यहाँ पे आ गया. However, with this जो हमने ऐड किया है यहाँ पे, राइट, इसके साथ हमारे पास something gets added which is to dot
if I write here contacts, right? वो प्लूरल हम क्यों लेते हैं? Because it lets us link the related accounts as a list. Okay, if you see, first contact is this, first name, last name, then test contact 2, then test contact 1. Okay, so along with the record, ये जो आप देख रहे हैं contacts, this related list, this related number of records जो भी है, वो हमारे पास क्वेरी में डायरेक्टली आ गए. How? Because we added the child object here, and it is not just restricted to one. You can have select id comma case number from, again for plural is cases, and if I write here cases and print it, अब मेरे पास child record and only child records can come directly. Okay, so this is something. Now let's think, अच्छा child record अगर directly use कर सकते हैं, so can we improve this? We are running 2 queries as of now, but अगर हमको पता है ये child record ही होगा, so what I'll do is that same thing, I'll go back, and instead of map, I'll go back to account. This account list is equals to select id comma first name comma last name from contacts from account, right? And order by name कहाँ पे जरूरत है, तो account print भी नहीं कर रहे, right? And I'll just write one loop which is for contact record, sorry, for account record in account list, for contact record in record dot contact system dot debug, right? Let's see, and सारे कॉन्टैक्ट मेरे प्रिंट हो गए, but this time instead of 2 we then reduced it to just one query. ये वाला पार्ट समझ आया सबको? पेरेंट और चाइल्ड का कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं इनर क्वेरी से, ये पार्ट समझ आया कि नहीं आया? यस और नो गाइस, यस और नो समझ आया तो बोलो, नहीं समझ आया तो बोलिए. सर जब भी ये पेरेंट टू चाइल्ड आ रहा है तो तब ये प्लूरल नेम यूज करना है. यस, ओके. और अगर आप चाइल्ड टू पेरेंट पेरेंट के सारे चाइल्ड आप क्वेरी करना चाह रहे हैं, इसलिए जब आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं इट विल ऑलवेज बी कांटेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम देना है.
राइट। राइट बट फॉर रिलेटेड जब आप पेरेंट टू चाइल्ड कर रहे हैं तब आप प्लूरल यूज करेंगे। ओके अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट जो था एम्प्लॉय का, राइट, सो देन इट वुड हैव बीन, नॉर्मली हम क्या करते थे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सी, हम अगर एम्प्लॉय क्वेरी करेंगे, राइट, राइट दिस वुड हैव बीन द वे, बट हमारा एम्प्लॉय का प्लूरल वाज एम्प्लॉय, सो इट विल बिकम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर सी। ओके, ओके ओके so it will always be plural जब भी आप इनर क्वेरी में चाइल्ड रिकॉर्ड्स ला रहे हैं। सर वन मोर थिंग, ये जो लाइन नंबर 13 में आपने फॉर लूप लगाया, फॉर कॉन्टेक्ट सी रिकॉर्ड्स कॉलन, ये रिकॉर्ड्स डॉट कॉन्टेक्ट्स हाउ सर, मतलब वो कॉन्टेक्ट समझ आया, ये रिकॉर्ड, अच्छा हाँ, record is अकाउंट, account ओके record. Okay, let me ओके rename the variables. See, this is what, अगर आप वेरिएबल ठीक से नहीं नेम करोगे तो यही प्रॉब्लम आएगी, राइट। नाउ इट विल बिकम easier to understand, ओके, right? मतलब फॉर अकाउंट लूप में रिकॉर्ड वी लेंगे, हैव टू, उस अकाउंट रिकॉर्ड के जितने कॉन्टैक्ट्स है उस पे फिर से लूप चलाया फॉर कॉन्टैक्ट एंड देन दिस। नाउ इन दिस Okay. केस अगेन वी आर बैक फ्रॉम वन लूप टू टू लूप। ओके, यहाँ पे एक लूप से हम टू लूप पे आ गए हैं, बट लूप काउंट बढ़ना इज बेटर एज लॉन्ग एज क्वेरी कम हो रहा है, राइट, सोकल कम यूजर, राइट। पीपल विल करे वहां तो एक ही लूप में काम हो जा रहा था, यहाँ पे हमने दो किया, हाँ, बट हमने क्वेरी कम किया बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बाद में कहाँ किसको क्वेरी ऐड करना पड़े, राइट। कोई नया फीचर आया वहां पे कुछ और ही 10 क्वेरी ऐड करनी पड़ गई, यू डोंट नो, राइट। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज टू reduce the query. So from 14 query we went down to 2, from 2 also we went down to 1. The only reason we went down to 1 because okay, we identified एक क्वेरी क्या क्या रिटर्न कर सकता है। सबसे पहले हमने लिस्ट से ही काम किया था, फिर लिस्ट को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम ऑप्टिमाइज कर पाए क्योंकि हमको पता है हम आईडी चेक कर सकते हैं विद इन अ कलेक्शन। तो एज लॉन्ग एज हम अकाउंट आईडीज का एक अलग से सेट बना ले तो हम उसी से चेक कर लेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। बट देन इट वाज लाइक कि अच्छा क्वेरी से तो हम मैप भी निकाल सकते हैं, तो फिर हम मैप अगर यूज करेंगे तो हमारा दो क्वेरी में काम हो जाएगा, वो लूप चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन वी वर लाइक ओके, अब यहाँ पे चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए हम एक ही क्वेरी में ला सकते हैं, लूप जो लिखने पड़ेंगे बट क्वेरी कम हो रहा है, सो दैट इज द बेटर ऑप्शन। The only way you could do it is if you know what are the types of query you can write. Query के operations क्या क्या है, what is limit, what is order, what is in, right, what is list, what is map, how to run a loop on the query. अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको बेसिक क्वेरी पे ही होते तो वो जो हमने पहला कोड लिखा था 14 क्वेरीज वाला, दैट इज द कोड आप कमिट करेंगे एंड देन समवन विल बी लाइक ओके व्हाई यू हैव रिटन लाइक दिस, कोड रिव्यू के टाइम। Is this clear to everyone? Sir, if there is no master data relationship, then we need to go with map. If there is no, yeah, if there is, see, the only reason we could went to this fourth approach is because यहाँ पे हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे क्योंकि ऊपर अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता, सो देन द सॉल्यूशन इन लाइन 4 इज द बेस्ट सॉल्यूशन यू कैन डू, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते ऑप्टिमाइज, राइट। बट देन योर अप्रोच शुड ऑलवेज बी जितना कर सकते हैं उतना तो करना है। If it is not a master child, you should be at line 4. If it is a parent child, you should be at line 11. Okay? Got it. There are lot of scenarios like this जहाँ पे list की जगह आप map use करके easily differentiate कर सकते हैं। So you should always try to see कौन से collection से better होगा, क्योंकि लिस्ट पे आप खाली लूप चला चला के चेक कर सकते हो, मैप बना लोगे तो डायरेक्टली गेट कर सकते हो। सो देयर आर वेज, बेटर वेज टू डू इट, राइट, व्हिच इज व्हाई वी हैड टू से द मैप इज बेटर। Anyone has any questions or any queries regarding this? See, this is basically
हमने वो एकदम कोर फंडामेंटल सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट से शुरू करके वी हैव कवर्ड ऑल पॉसिबल थिंग्स इन एसओक्यू जो हम कर सकते हैं. द थिंग्स यू कैन डू इन एसओक्यू यू ऑलरेडी नो. नाउ बेस्ड ऑन दिस एनीवन हैज एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? सर जैसे यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट और कॉन्टैक्ट का एग्जांपल था कि कॉन्टैक्ट इज रिलेटेड टू अकाउंट. सो अगर जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो तो कोई तो मैंने केसेस भी ऐड करके देखा था ना, केसेस भी ऐड किए. मल्टीपल चाइल्ड आप एक साथ क्वेरी कर सकते हो. मतलब वो कितने कर सकते हैं, उस पे कोई लिमिट है? हाँ, सब पे लिमिट है. उसमें एक मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर 15 ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो क्या हम 15 ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट का डेटा फैच कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू? सब पे लिमिट है, सब पे लिमिट है. तो क्या लिमिट है सर वो? That is something you have to research. You guys have to research something. Let's say आपने जैसे बोला कि suppose I can add also like this, some other object, then some other object, right? Then some other object. कितने हम कर सकते हैं? उसके लिए एक लिमिट है. Let's take suppose a contact के अंदर एक user का भी है, right? या फिर let's say some other object है, तो उसका मैं करता हूँ select ID from say XYZ, right? XYZ एक इसका एक inner child है. देन आई एम लाइक अच्छा इसका भी एक इनर है, राइट? तो कितना डीप तक मैं जा सकता हूँ? सेलेक्ट आईडी फ्रॉम लेट्स से एबीसी, राइट? अगेन आई विल गो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम सीडी, राइट? दिस इज ऑल्सो वे यू कैन गो. आप एक लेवल जा सकते. किसने बोला है आपको? मैंने आपको बोला आप एक ही लेवल जा सकते हो, राइट? सो देयर आर लिमिट्स. इसी के लिए तो मैंने आपको वो लिमिट्स क्लास का एक मैंने सबसे पहले लिंक भेजा था. गवर्नर लिमिट्स कहाँ पे क्या होती है, कितनी होती है, राइट? You guys have to study it. You have to realize it. वो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए सारे लिमिट्स. Someone will one day in interview surely ask you, what is the limit for this? How many related objects can you query? Right? So the most important two limits I have told you, see, which is 50,000 and 100. अब बाकी के हर Basically, we चीज have to manage all the transaction only. yes, ये वाला why I telling you because चलो एक और बता देता हूँ. ये जो डेप्थ वाला जो आप देख रहे हो, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, यू कैन गो 5 लेवल्स डीप. अकाउंट से कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर एक और, अकाउंट से उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और. 5 लेवल डीप तक आप जा सकते हो. उसके अंदर आप नहीं जा सकते. इवन वन थिंग इज, सपोज ये हमने पेरेंट्स से चाइल्ड किया है, राइट? ओके, बिफोर आई एक्सप्लेन दैट पार्ट, दिस पार्ट इज क्लियर. पेरेंट्स से चाइल्ड का लॉजिक इज क्लियर, राइट? राइट. नाउ अब पेरेंट्स से चाइल्ड तो हम क्वेरी कर सकते हैं, बट देयर इज आल्सो चाइल्ड टू पेरेंट यू कैन क्वेरी, which is like this, somewhat like this, list of the contacts, right? Contact records is equals to select id comma the first name comma last name comma account dot name, account dot type, account dot industry. This is the exact reverse of this query. हम अकाउंट से चाइल्ड पे जा रहे थे, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पे जा रहे थे, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट से अकाउंट पे भी जा सकते हैं. Want to see the result of this? Let me print this. For contact pardon, that record
dot debug. Let's comment everything else. From parent to child you can go, from child to parent also you can go. See, right? You can go. सर इसमें एक ही लाइन में पेरेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है जैसे हमने ऊपर कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे है, एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे ही आई. द सेम थिंग वी कैन डू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट. जहाँ पे हमारे पास चाइल्ड था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट वी हैड बिल्ट? एम्प्लॉय, राइट? तो आप एम्प्लॉय से आप अकाउंट का फील्ड भी ला सकते हैं. लेट मी शो यू. अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर हमको चाहिए था, राइट? ना अकाउंट नंबर हम क्या कर रहे थे, हमको चाहिए था टाइप, राइट? नॉट इंडस्ट्री. से कॉन्टैक्ट से हमने अकाउंट का डेटा फुल कर लिया. यू कैन डू दिस थिंग. सर दैट इज ओके. आई एम सेइंग जैसे आपने डबल फॉर लूप लगाया वहां पे 11 12 यहाँ 13. पे, हाँ हाँ तो यहाँ पे आपने सेपरेटली कॉन्टेक्ट का डेटा अलग करवा लिया. हाँ, यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा. यस, बिकॉज दिस इज लाइक अ रिलेटेड लिस्ट. ओके, दिस इज लाइक अ रिलेटेड लिस्ट. यहाँ पे जब मैं प्रिंट कर रहा था, आई शोड दैट्स व्हाई हियर, राइट? आई प्रिंटेड दिस हियर. खाली अकाउंट आईडी आ रहा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ अकाउंट रिकॉर्ड, see, only the account IDs were coming. Okay, even though the data is already there, but because it is there as a related list to this, right? तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अकाउंट रिकॉर्ड पे नहीं मिलेगा. ओके, कैन वी डू द सेम थिंग वाइस वर्सा जब हम कॉन्टेक्ट से अकाउंट फेच कर रहे हैं? नो, ओके, यू डोंट राइट लाइक दिस हियर. यहाँ पे जब आप कर रहे हो, यहाँ पे इट इज नॉट अ लिस्ट, इट इज वन रिकॉर्ड. पेरेंट से चाइल्ड पे मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं. एक कॉन्टैक्ट के साथ मल्टीपल कॉन्टैक्ट, अकाउंट के साथ मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, राइट? बट बिकॉज इन दिस केस एक कॉन्टैक्ट के साथ देयर विल बी ओनली वन अकाउंट, सो यू विल ओनली बी एबल टू राइट इट लाइक दिस, राइट. सिंगल वैल्यू, नॉट अ लिस्ट. यू कांट रन अ लूप. लूप रन करने के लिए है ही नहीं. कॉन्टैक्ट पे एक ही अकाउंट आईडी लुकअप फील्ड है जिस पे लिंक्ड है, उसके थ्रू जाके हम खाली फील्ड का वैल्यू ला रहे हैं. Okay, you can't run a loop here because for, if you think for account in c record dot account, तो वो तो एक ही अकाउंट है, तो लूप कहाँ से आएगा? Okay, so it is a single variable, single value. See? Single value. Okay, राइट सर. एंड सर वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिनेरियोज है, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट और कोई और एक और हम ले लेते हैं व्हिच वी रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट एंड इन व्हिच कॉन्टैक्ट इज द पेरेंट. okay. तो यहाँ पे जैसे हमने अभी फिलहाल कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट का करा है इस लाइन नंबर 19 20 21.
तो जस्ट बिकॉज अकाउंट इज अ पेरेंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो हम उसके फील्ड लेवल डॉट अपना फील्ड नेम डॉट वो उसका ये अकाउंट डॉट नेम इसके थ्रू हम सर्च कर रहे हैं। We अब can do it हम like this. ओके, सो वी कैन डू बोथ। ये जो दो सिनेरियोस हमने ऊपर देखे, वी कैन कंबाइन इट एंड डू। All of these are individual tokens. A combination of the tokens is the query. It is up to you what combination you want. राइट, ओके। Okay. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को अभी एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि मैंने जो एम्प्लॉइज यहाँ पे ऐड कर दिया है, बट एक्चुअली कॉन्टैक्ट इज नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। ये तो मैं जस्ट आप लोगों को डेमो देने के लिए दिखाया, राइट? तो इट ऑल्सो वैलिडेट्स रिलेशनशिप होना चाहिए तो ही दिखेगा। अगर मेरा कॉन्टैक्ट पे अकाउंट का लुकअप नहीं होता तो ये एरर दे देता। सिमिलरली जैसे ही मैंने एम्प्लॉइज डाला, उसने जाके देखा कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे क्या कॉन्टैक्ट का कोई पेरेंट है, मास्टर डिटेल है, बोला नहीं है, एरर तो सेव नहीं करने देंगे क्लास। राइट, Okay. If I write here something like this, the last name 1 2 3 4, ये उसको फील्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं कॉन्टैक्ट पे, अभी एरर थ्रो करेगा। सी, नो सच कॉलम, राइट? सो क्वेरीज सेव करते वक्त तो वैलिडेट करता है, तो फील्ड का नाम, रिलेशनशिप फील्ड का नाम, ये सब चेक होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट से जगह कॉन्टैक्ट किया होता, एरर। और सर इसको कंफर्म करने के लिए देयर इज अ गाइड थ्रू व्हिच वी कैन नो कि हमें फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट लिखना है या फिर हमें इसको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा? नहीं, प्लूरल इसलिए तो मैंने बोल दिया ना, चाइल्ड के लिए यू हैव टू राइट प्लूरल। नाउ हर ऑब्जेक्ट का प्लूरल तो होगा, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको प्लूरल देना पड़ता है, इट्स अ मैंडेटरी फील्ड। राइट, और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी प्लूरल है, सो यू नो यू हैव टू राइट प्लूरल। बट फॉर You can't रेफरेंस आई change. थिंक इट इज देयर ऑन द रिलेटेड फील्ड के डिटेल्स में आल्सो इट इज देयर। That you can pull from there. Related list का नाम भी contacts रहेगा, related fields में भी वो आएगा, so you can get it from there, master detail. Great. Anything else, guys? Anyone else? Any queries? Any questions? No? Great. That's extremely good. I'll just first share the code in the chat. For your reference, you guys can use it and look it up. Where is that code block? सर एक क्वेश्चन था। Yes. सर ये हम लोग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, जैसे आप लिए अकाउंट और बहुत सारे, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया और बहुत सारे हो गए। कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या होगा? खाली कस्टम आपको ऑब्जेक्ट्स में आप अलग हो गया क्या? नहीं, फील्ड का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम आपको सही देना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द नेम हैज टू बी द एपीआई नेम, ऑब्जेक्ट नेम हैज टू बी ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, राइट? तो बस, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, कस्टम फील्ड के एंड में अंडरस्कोर सी ऐड हो जाएगा, दैट इज ऑल। तो योर अप्रोच शुड डिफरेंस ऑलवेज नहीं रहेगा? नहीं, आपका डिफरेंस नहीं रहेगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, जब भी आप क्वेरी में कुछ फील्ड डाल रहे हैं, व्हाट यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड दिस फील्ड नेम। स्टैंडर्ड के लिए ये सेम है, बट अगर आप कस्टम पे जाते हैं, राइट, तो देन रिक्वायरमेंट इज स्टिल सेम, आपको डालना यही है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फील्ड बनाते वक्त जो सेट हुआ है वो सेट हुआ है, राइट? आपने एनुअल सैलरी डाला, ये एनुअल सैलरी अंडरस्कोर सी हो जाए। ऑब्जेक्ट नेम, अकाउंट का ऑब्जेक्ट नेम ही अकाउंट है, बट आपके ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम इज एम्प्लॉय अंडरस्कोर सी, तो आपको ये पुल करना है। जब चाइल्ड रिलेशनशिप बनाएंगे, यू हैव सेट अ प्लूरल, सो इट विल बिकम एम्प्लॉइज अंडरस्कोर सी। ओके, सो रिक्वायरमेंट इज, इट्स नॉट लाइक स्टैंडर्ड और कस्टम क्या है, आपको डालना है एपीआई नेम।
For fields, for object, everything. API नहीं. Okay. See, this is इसका standard field है, name. Out of the box field है name, इसलिए name आया. Right? तो आप name ही डालेंगे. ये आपने बनाया है, इसमें underscore C add हो गया, आप ये डालेंगे. You just have to put whatever is in this column. Okay. Yes. Great. So the thing is, ये जो कोड का जो बीच में जितना मैंने काम किया था वो तो क्योंकि because I kept modifying, deleting, removing, तो वो तो आप लोगों को वीडियो देख के ही फिर से मिलेगा. But the final version of this, which is basically the three main types of complex queries जो हो सकता है, वो I have already added here. I have sent in the chat. Go through all of this. Go through this recording very carefully. Go through the recording of last class very carefully because this covers everything you need to know about SOQL. And you should know everything about SOQL because it is going to be used everywhere. Apex लिखना ही पड़ेगा Salesforce के प्रोजेक्ट में एज अ डेवलपर, तो आपको क्वेरी आना ही चाहिए एंड क्वेरी से इंटरव्यू क्वेश्चन भी आएगा ही. It will come. Now one thing I did not tell you, which is it should actually be up to you guys, but I'll just share the link. Okay. These are, no, this is the correct character limit. Where is the relationship today's timeout characters result? ये दूसरा है. This is not that one. ये इनका सारा वेबसाइट्स का अपडेट चल रहा है ना. It is like completely broken out into everything. So, right. This is the link. And you should, even if you don't remember everything here, I don't think anyone remembers everything. Even I don't remember everything. But the common ones you should know. Number of queries, 100. Number of records, 50,000. Right? Then DML हम कल पढ़ेंगे. So we'll go through DML tomorrow. We should know, that is fine. But this is kind of the main set of limitations you should have. Okay. So we'll cover this more tomorrow. But yeah. सर और एक थोड़ा मैं एक और कुछ आर्टिकल में पढ़ा था, अंडरस्कोर आर भी होता है ऐसा. अंडरस्कोर आरपी होता है, रिलेशनशिप के लिए होता है, राइट? इट इज देयर. मुझे वो रिलेट करने में थोड़ा मुश्किल हो गई सर. आई मीन आप जो नहीं, बताए यहाँ थे पे अभी और तक हमने अंडरस्कोर आर यूज नहीं किया है, राइट? राइट, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर आर अभी तक यूज नहीं किया है. सो आई वांट यू गाइस टू लुक अप कहाँ पे अंडरस्कोर आर यूज होता है. ये तो हमने सारे पेरेंट चाइल्ड कर लिए, तो यहाँ तो यूज नहीं हुआ है आर, राइट? आर इज फॉर रिलेशनशिप, राइट? सो वेयर इट इज यूज्ड, लुक अप. थोड़ा आप सोचिए, अगर आपको कल तक में नहीं फिगर आउट होता है देन टुमारो आई विल टेल यू. वेरी सिंपल यूज केस कि कहाँ पे आर यूज होना है. ओके. So no worries. Try to look it up. If you are not able to figure it, tomorrow I'll tell you. Okay. Sounds good? yes sir, yeah.
Good. Fine. I think that should be good. Then for now, today, you guys have two tasks. One is go through this, come up with any queries with SQL you have. Then tomorrow, once we join, we will discuss those first. Else, we'll then proceed to the next part. If you're not able to figure it out, I'll also tell कहाँ पे हम plural use करते हैं. What is the use case जहाँ पे हमको underscore r use करना पड़ता है, right? So we'll go through that, and if all the queries are resolved, then we'll move on to what is DML operation. Two major things I told in Apex हमको आना चाहिए, डाटा लाना और डाटा वापस डेटाबेस में भेजना. तो डाटा लाना तो हम सीख चुके हैं कोड में, अब कोड से वापस डेटाबेस में भेजना वो हमको सीखना है. So that we'll start learning. Okay? Sir, I have one request. Yes. Yeah, sir, if you could just give us some sort of assignment to be completed by tomorrow itself. For On queries? this, For SQL? yes, sir. Yes, sir. No, see, the thing is, for SQL only, it is not like आप database में क्या करेंगे, आप query करेंगे, fetch करेंगे. What you should be doing is, the assignment will be based on, I am thinking, after the DML is also done. Okay, कि आप डाटा लाएंगे, आप उस पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, फिर वो डेटाबेस में अपडेट करेंगे. That is the complete transaction. राइट सर, मैं बस ये सोच रहा था कि if अगर हमारे कुछ सिनेरियोज हो जहाँ पे हमें यहाँ से करना हाँ, है, हम right. कस्टम So, ऑब्जेक्ट for- बनाए कर लें. Yeah, so that is what I'm saying, right? For an actual use case, you need data also to be updated, modified. नहीं तो आप क्या query करेंगे, खाली ऐसे queries run करते रहेंगे, right? How do you check that the data got updated? कि आप अपना कोड चलाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाकर रिकॉर्ड दिखना चाहिए ना कि कुछ हुआ. Query you cannot validate, Okay. right? So no worries. Once this is done, once tomorrow DML is done, then I have something prepared related to standard objects, also related to the employee. That is why suddenly that employee came to my mind, because I was just thinking before class regarding this. So how to modify these things. Okay. Okay, sir. Fine. Sounds great. I think that was good. We had a very good session today. Catched up a lot. So SQL, I would say, is hopefully completed, other than doubts and queries which come, right? And tomorrow we'll probably begin with DML once all of your doubts and queries are clarified. Okay? ये एक सेकंड, ये वाला लिंक मैंने भेजा क्या, गवर्नर लिमिट्स वाला? नहीं, ये तो ऐप लिमिट्स भेज दिया नहीं, यही ठीक है. दिस इज ऑन. फाइन. Great. Good. Great then. Thank you everyone. See you again tomorrow. Please study, go through this, and let me know if anything else comes up. Okay? Okay, sir. Thank you.